Good morning students. Today's video is on exercise 3.3 of class 10 chapter 3rd, that is on the method of substitution. I am Akhil Shah from Savar Tuition and Coaching Center, math and science teacher. So let's start with this chapter and the exercise 3.3. So this is the very simple and easy method, that is the method of substitution. So let's start with this simple example from the simple question from exercise 3.3, that is question number first from the first part, that is x plus y is equal to 14 and second is x minus y equal to 4. What is the meaning of substitution? First of all, the substitution means to substitute someone, to give a place, one's place to other person. फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्कूल्स में देखें तो सब्स्टिट्यूशन पे एक टीचर आता है, मतलब कि एक टीचर की जगह पे दूसरा टीचर आ रहा है, दैट इज़ द सब्स्टिट्यूशन. सिमिलरली द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हमें एक वैल्यू की जगह दूसरी वैल्यू को देनी है, उस वैल्यू को पुट करना है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करना है. सो हियर इज़ द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं. जिस इक्वेशन से हमने x या y की वैल्यू निकाली है ना, उस इक्वेशन में पुट नहीं करना, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं. और x या y की वैल्यू हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. हाँ, कई बार क्वेश्चन की वैल्यू से इजी हो जाता है, किसी वैल्यू से डिफ़िकल्ट हो जाता है. जैसे कि अगर मैं इसमें से ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, इसमें से वैल्यू निकालता हूँ, x क्या आ जाएगा मेरे पास 4 प्लस वाई. x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई. अब मैंने करना है सब्स्टिट्यूट यानी कि ये जो x है इसकी जगह पे x इक्वल टू 4 प्लस वाई पुट कर दूँ. तो पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा, अगर x की जगह पे 4 प्लस वाई पुट करूँगा तो x की जगह पे 4 प्लस वाई इक्वल टू 40. 2y प्लस 4 इक्वल टू 14. 4 इधर प्लस का उधर जाके माइनस, दैट इज 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10. हेयर इज 2y, y इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, that is equal to 5. y is equal to 5, here is the answer. and क्वेश्चन यहीं पे नहीं छोड़ना है, we have to find the value of x also. तो यहाँ से जो हमने x की वैल्यू निकाली थी, इसी में से x की वैल्यू निकाल लेंगे. 4 प्लस वाई दैट इज़ 4 प्लस 5 दैट इज़ इक्वल टू 9. अब अगर चेक करना हो कि जो वैल्यू निकाली है वो ठीक है कि नहीं, तो इसमें पुट करके देख लो. 9 प्लस 4 दैट इज़ इक्वल टू 9 plus 5 that is equal to 14. So it is the simple way to check the answer whether it is correct or not. So we have the in total 6 question. So I will do this some typical one. So here is the, let's do with the question number 6. I will do this 6th part. Rest of the questions you have to try it by yourself, because practice is must in the board exam. If you are not trying the questions, then it is difficult for you to clear the exam, because in the exams we are not getting the same statements of our questions. So keep on trying by yourself, try to solve the question by yourself, so that it is easy for you to solve the questions in the exams also. So here is the question number 6. देखने में थोड़ा सा टिपिकल सा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं. हमें LCM लेना आता है तो ये क्वेश्चन भी इजीली ही हो जाएगा. तो फ्रॉम द फर्स्ट वन लेट्स डू इट. सो लेट्स स्टार्ट इट विथ. So here is the equation. So let's start with the LCM first. In the equation number 1, and here is the equation number 2. Let's verify the statement first. Is there any mistake? No, it's correct. So first take the LCM of 2 and 3. What is the LCM 2 and 3? That is 6. 6 divided by 2 we get 3, that is equal to 9x, and 3 2 minus 10y. 9x minus 10y. Again here is 6. 6 divided by 2 we get 3. 3 3s are 9. 6 divided by 3 we get 2. 5 2s are 10. And here is minus 2. 9x minus 10y is equal to minus 12. Here is the equation. Let's make in the equation number 3rd. And other one is x by 2 plus y by 2 is equal to 13 by 6. X by 2 and y by 2. X by 3. Here is the x by 3. Okay. X by 3. Again the LCM is 6. So here is 2x plus 3y equal to 13 by 6. So डिनोमिनेटर में दोनों साइड 6 है, तो 6 से 6 कट, वी गेट 2x प्लस 3y इक्वल टू 13.
here is equation number 4. We have the two equations, 9x minus 10y equal to minus 12 and 2x plus 3y equal to 13. So let's move on to the next step. So now we substitute the value from the So now I will substitute the value from the equation number 1. Let's take from the equation number 1, 9x is equal to 10y minus 12. 10y इधर माइनस का था, उधर जाके प्लस हो जाएगा. So here is the equation number 3. Now put in equation 4. equation 4 में 1 मिनट इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. x is equal to 10y minus 12 डिवाइडेड बाय 9. अब इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में. पुट इन इक्वेशन 4. सो 2 इंटू वट इज x 10y माइनस 12 बाय 9 प्लस 3y इक्वल टू 13. ओके, सो लेट्स डू इट अगेन. द फर्स्ट वी मल्टीप्लाई इट बाय 2 एंड टेक द LCM, दैट इज 20y माइनस 24 by 9 plus 3y equal to 13. 20y minus 24 plus 9 3s are 27. We take the LCM equal to 13 minus 9. 9 उधर जाके multiply हो गया. Now 27 plus 20 we get 47y और 13 multiply by 9. What is the 13 multiply by 9? 13 into 9 that is 117. 24 उधर जाके प्लस हो जाएगा. सो 117 प्लस 24 वी गेट 141. दैट इज 141 एंड 47y. अगर 141 को 47 से डिवाइड करते हैं, सो व्हाट वी गेट इन द आंसर डिवाइडेड बाय 47. हियर इज द 3. 47 3s आर 141. सो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई. अब हमने नेक्स्ट क्या निकालनी है, x की वैल्यू. x की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी. x इज इक्वल टू 10 इंटू 3 माइनस 12 बाय 9. दैट इज 30 माइनस 12 बाय 9. सो 30 में से हमने क्या माइनस करना है, दैट इज 12. सो हेयर इज द आंसर, दैट इज 18 डिवाइडेड बाय 9. हेयर वी गेट द 2. x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई. अगर x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं और y की वैल्यू 3 कर देते हैं, वी गेट द आंसर -2. सो हेयर इज द आंसर ऑफ द टिपिकल वन क्वेश्चन हेयर. एंड द अदर क्वेश्चन इज दैट इज 4. देखने में थोड़ा सा लगता है कि हाँ मुश्किल है, लेकिन बहुत ईजी है. इफ़ यू ट्राई इट बाय योरसेल्फ, सिंपल पॉइंट्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ईजीली हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 का मैं हिंट दे देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 जो रूट वाला है, अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों इक्वेशंस जो हैं आगे इक्वल टू 0 में हैं. तो सिंपली इसका आंसर हमारे पास x और y दोनों ही 0 आ जाएंगे. आप इसको सॉल्व करेंगे, x और y दोनों ही 0 आ जाएंगे. सो आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2. Okay, let's start with the question number 2. So students, here I skip the questions part 2nd and 3rd, 4th and 5th from the question number 1. The main reason of skipping this question, because you guys can get the solution from anywhere on the internet, whether it is a Play Store or YouTube or Google. Just type the question and you get the answer. Play Store पे तो बहुत सारी ऐप्स हैं जहाँ पे आपको NCERT के सोल्यूशन मिल जाए. बट द थिंग इज़, क्या वो सोल्यूशन इनफ रहेंगे आपको बोर्ड एग्जाम्स में क्लियरली ईजीली पास करवाने के लिए? सो द आंसर इज़ नो. So because the practice is must, so be used to try the question by yourself. So let's start with the question number 2 here. Question number 2, we have the two equation, 2x plus 3y equal to 11, 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24. Here we have the two equations. We have to find the y इक्वल टू mx प्लस 3 में से हमने m की वैल्यू निकालनी है. तो उसके लिए हमें x और y की वैल्यू चाहिए. सो वी गेट दी x और y फ्रॉम दिस. पहले तो सेकंड इक्वेशन को मोल्ड करते हैं. इसमें से 2 कॉमन आ रहा है. x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 24, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 24 बाई 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 12, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 12.
दैट इज़, अब ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है, पहले हमने इसको माना था तो उसको दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, 2y माइनस 12 है द वैल्यू ऑफ x, पुट इन इक्वेशन 1, सो 2 इंटू 2y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल टू 11, 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल टू 11, 4 प्लस 3 दैट इज़ 7y, 11 प्लस 24 दैट इज़ 5, 35, 7y implies y क्या आ रहेगा, 35 डिवाइडेड बाय 7, 7 5 ज़ा 35, y की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हेयर, x इज इक्वल टू 2y माइनस 12, 2 इंटू 5 माइनस 12, 10 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू माइनस 2। वट इज़ द वैल्यू ऑफ x, दैट इज माइनस 2। अब हम इसमें से x m की वैल्यू निकालेंगे, 5 इज इक्वल टू m, x की वैल्यू माइनस 2 प्लस 3। उससे पहले चेक कर लो कि जो हमने x और y की वैल्यू निकाली है क्या इन दोनों इक्वेशंस में वो सूटेबल है कि नहीं। अगर हम x की वैल्यू माइनस 2, माइनस 4 आ रहेगा और y की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो क्या आ रहेगा, तो y इक्वल टू 5 3 ज़ार 15 एंड x इज इक्वल टू minus 2 that is minus 4, 15 minus 4 we get the 11, okay that's fine, so the answer is correct. So let's start with it, that is minus 2m plus 3, 5 minus 3 equal to minus 2m, minus 2 equal to minus 2m, माइनस माइनस का 2 से 2 कट, 1 इज इक्वल टू m, m की वैल्यू हमारे पास पाना है। अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कम आता है लेकिन हाँ एक दो बार बोर्ड में आ सकता है, लेकिन इसको इसलिए इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में हम लिख सकते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट विद द अदर क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो गाइस इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल स्टेटमेंट क्वेश्चंस है, 6 स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेटमेंट क्वेश्चंस ही आते हैं, लेकिन घबराना नहीं है इस चीज़ से। हाँ लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि स्टेटमेंट्स को प्लीज़ लाइटली मत लेना, क्योंकि अगर स्टेटमेंट समझ आ रहा है क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पता लग गया, नेक्स्ट एक्सरसाइज में एलिमिनेशन आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा, आपको मेथड इजीली समझ आ जाएंगे। किसी एक मेथड को ग्रिप कर लेना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं उससे। लेकिन स्टेटमेंट जब तक समझ नहीं आएगी आप सॉल्व क्या करोगे। सो स्टेटमेंट को अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितने स्टेटमेंट क्वेश्चंस एक्स्ट्रास में से भी कर सकते हो उनको करो, खुद समझने की कोशिश करो ताकि वो इजी रहे सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26 एंड देन वन नंबर इज़ 3 times द अदर नंबर, फाइंड देम। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26। सो लेट कर लेते हैं, लेट टू नंबर्स बी x एंड y, दो कोई भी नंबर है, एक x है और दूसरा y, इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास 26 है और हम मान के चले हैं कि x इज़ ग्रेटर देन y है, तभी उसको ऐसे लिख सकते हैं। एंड वन नंबर इज़ 3 times दी अदर नंबर, फर्स्ट नंबर है। अगर इसको नहीं भी मानना है तो भी हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे और दोनों ही ठीक होंगे। चलो x को ग्रेटर देन मान लेते हैं। वन नंबर इज़ 3 times दी अदर नंबर, सो फर्स्ट नंबर इज़ 3 times दी अदर नंबर। बहुत इजी सी इक्वेशंस हैं हमारे पास, सिंपल सब्स्टिट्यूट कर दो, x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन y, क्या आ जाएगा मेरे पास 2y इज इक्वल टू 26, y क्या आ गया 26 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 13, y की वैल्यू मेरे पास 13 आ गई। x क्या है मेरे पास, x इज इक्वल टू 3y यानी 3 इंटू 13 दैट इज 39, तो 39 माइनस 13 इक्वल 26। बहुत ईजी सा था, सिर्फ स्टेटमेंट समझने की ज़रूरत थी। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, द लार्जेस्ट ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं हमें पहले वो पता होना चाहिए, वो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो। द पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कह देते हैं। एंड कॉम्प्लीमेंट्री कौन से हो जाते हैं हमारे पास, जिनका सम 90 डिग्री हो जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, द लार्जेस्ट ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। सो फर्स्ट तो उन्होंने दे ही दिया कि लार्जेस्ट ऑफ टू, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंड द लार्जेस्ट ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। तो एक्स को लार्जेस्ट मान लेते हैं, वो स्मॉलर से एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, मतलब कि जो स्मॉलर में हम अगर 18 ऐड कर दें तो वो मेरे पास
लार्जर एंगल बन जाएगा। ध्यान से सुनो, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। तो ये मेरे पास बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 18। दो इक्वेशन है मेरे पास। अगेन वैसे इसको ऐसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन ही करनी है। तो x इक्वल टू वाई प्लस 18 पुट इन 1 x क्या आ रहेगा y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, 2y प्लस 18 इक्वल टू 180, 2y इक्वल टू 180 माइनस 18। अब 180 में से अगर हम 18 माइनस कर दें तो मेरे पास क्या आंसर आ जाता है, दैट इज़ 162 इज़ दी आंसर। y इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाय 2। 162 डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 81। तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई है 81, मतलब कि एक एंगल मेरे पास 81 है। सो इट इज़ इजी टू फाइंड दी अदर वन। इसमें वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल टू 81 प्लस 18। दूसरा एंगल क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट इज़ 8 प्लस 1 9 99। x इज इक्वल टू 99। अगर 99 प्लस 81 करके देखें तो मेरे पास कितना एंगल बनना चाहिए, 180। सो वो बन भी रहा है, मतलब कि मेरा आंसर ठीक है। सो दीज आर द टू एंगल्स। नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3rd। सो लेट्स इरेज दिस क्वेश्चन फर्स्ट। So here are the solution of first two questions of part 3rd. In the next video I will make the solution of the part 3rd, 4th, 5th and 6th of the same question. So be in touch, do like, subscribe and share and press the bell icon for the latest update on my channel. Thanks for watching the video.